آپ سے الفت کرنے والا, سماج کو اچھی دشا دکھانے والا انسان نہیں بنا تو پھر تیری تعلیم کا کوئی مقصد نہیں ہے. تعلیم کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان انجینئر, ڈاکٹر, پروفیسر بعد میں بنے, سماج کا ایک اچھا ویکتی اور انسان پہلے بن جائے, پہلے بن جائے. 99% سے آپ بتائیے ایمانداری کے ساتھ کتنے لوگ ہے ہمت کہ کبھی جا کر اسکول انتظامیہ سے آپ پوچھئے, ہے ہمت کہ کبھی جا کر کالج سے پوچھئے, مگر بڑے باوقار عالم مدرسے میں بیٹھے ہیں جس کی طبیعت وہی جا کر پوچھ دیا, جس کی طبیعت وہی جا کر بول دیا. رمضان میں زکوٰۃ کیا دے دیا کہ عالم صاحب کو غلام ہی سمجھ لیا ہے اور کہاں پیسہ دے کر پڑھاتا ہے. کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ جا کر پوچھے کہ میرا بیٹا تیرے کالج میں آوارہ کیسے ہو گیا, میری بیٹی تیرے کالج میں آوارہ کیسے ہو گئی. آج یہی وجہ ہے ہم نے 99% ہماری اولادیں جہاں پڑھتی ہے ہم نے وہاں کے نظام کو درہم برہم کر کے رکھا ہے. تو یہ 1% مدرسہ بھی بچائیں گے, یہی 1% مسجد بھی بچائیں گے, یہی 1% مجاہدین اسلام بن کر اسلام کی حفاظت کے لیے بھی جائیں گے, اور یہی 1% جب آپ سماج میں کاٹے پیٹے جائیے گا تو آپ کو بچانے کے لیے بھی جائیں گے, اور یہی 1% آپ کو حلال حرام بھی بتائیں گے. تو باقی یہ 99% لوگوں کی دنیا میں کیا ضرورت ہے؟ یہ لوگ اس لیے ہے کہ شادی میں جہیز مانگیں, یہ لوگ اس لیے ہے کہ لڑکیوں پہ ظلم کریں, یہ لوگ اس لیے ہے کہ ماں باپ کو گالیاں دیں, کیا یہ لوگ اس لیے ہے کہ ساس سسر کو اس کی بیوی بیٹی کے سامنے گالیاں دیں؟ کیا سماج یہی سکھلاتا ہے؟ میری بات آپ کو بری لگ سکتی ہے, لیکن بری لگ بھی جائے تو مجھے کوئی اثر نہیں پڑتا, اس لیے کہ ہر روز میں ماتم کرتا ہوں جب سیوان ریلوے ڈھالا سے گزرتا ہوں. نام ہے اسلامیہ کالج اور اسلام کا بوباس نہیں ہے, نام ہے اسلامیہ ہائی اسکول اور اسلام کا کوئی وجود نہیں ہے. ان ظالموں کا قیامت کے دن کیا انجام ہوگا جو نام تو اسلامیہ کالج رکھے ہیں مگر روزانہ وہاں پہ عزتیں لوٹیں, عزتیں تباہ و برباد ہوں. صاحب تو یہ سماج ہے اور یہ ہے ہمارا معاشرہ. ظاہر سی بات ہے تعلیم کا مقصد ہے معاشرہ اچھا ہو, تعلیم کا مقصد ہے زندگی اچھی ہو. آپ ایمانداری سے بتائیے گا, ظاہر سی بات ہے اسلام نے کہا کہ رشتہ کرنے سے پہلے دیکھو فَأَسْفَرُوا بِذَاتِ الدِّينِ, یہ دینداری ہے کہ نہیں ہے. میں نے کہا اپنے استاد سے حضور دینداری کو حضور نے ترجیح دی. کہا ہاں اس لیے کہ یہ حسن و جمال ایک دن ختم ہو جائے گا, یہ دولت ایک دن ختم ہو جائے گی. خاندان کی بات تو ولی کے گھر میں شیطان اور شیطان کے گھر میں بھی ولی ہو سکتا ہے, مگر اگر لڑکا دیندار ہوگا اور لڑکی دیندار ہوگی تو رہتی دنیا تک جب تک وہ زندہ رہیں گے ان کے اچھے کردار کی خوشبوؤں سے. اگر لڑکی نیک ہو تو میکہ بھی خوشبودار رہے گا, اور سسرال میں قدم رکھے گی تو سسرال بھی اس کے قدموں کی برکت سے خوشبودار ہوگا. شادی ہوئی, شادی کے بعد سارے VIP دوست آ گئے, 2-4 تصویر کھینچ لی, لکھا I love my wife. میں اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا ہوں. بیوی نے کہا پگلے میری محبت تو اسی وقت مر گئی جب میرا باپ تیرے گھر سے روتے ہوئے گیا. تیری محبت تو اسی روز مر گئی جس دن تیری وجہ سے میری ماں کے زیور بک گئے. میری محبت تو اسی دن کم ہو گئی جس دن تیری وجہ سے میرے باپ کو تیرا باپ ذلیل اور رسوا کر رہا تھا. صاحبوں یہ کیسی محبت ہے؟ شادی کے بعد محبت کا انبار ہو گیا, اور شادی کے پہلے آپ کو ایک بار بھی فکر نہیں ہوئی کہ جس کو ہم رشتہ دار بنا رہے ہیں, اپنا بنا رہے ہیں, آج وہ میری وجہ سے قرض میں ڈوب رہا ہے, آج میری
वजह से उसकी ज़मीनें बिक रही है। किसने कहा कि साहब 1000, आप किसने कहा 50 गाड़ियाँ स्कॉर्पियो लेकर के जाइए, किसने आपको कहा पूरे गांव को बाराती लेकर के जाइए। याद रखिए, आप भी जब बेटी वालों के यहाँ जाइए ना बारात में, तो कीमती नाश्ता लेने से पहले सोचिए कहीं ये नाश्ता कर्ज के पैसे का तो नहीं है, कहीं ये मुर्ग मुसल्लम बिरयानी लड़की वाले ने जमीन बेचकर तो नहीं दी है। तो आप आहिस्ता से पूछिए, साहब हमें खिलाने के लिए तुमने कर्ज तो नहीं किया? अगर कर्ज किया है तो हम उसकी अदायगी को तैयार है। और वलीमा में जाइए ना, तो आप लोग भी वलीमा में जाके खा कर मस्त हो जाते हैं। एक बार लड़के वाले से भी पूछिए, तुम्हारे पैसे का वलीमा है या जहेज के पैसे का वलीमा? याद रखिएगा, खूब गौर से मेरी बात सुनिएगा। बुरा लग जाए तो उसे दिल में जरूर लेकर के जाइएगा। इसलिए लेकर जाइएगा कि अगर आपका ससुर खुशी से आपको एरोप्लेन दे दे, कोई बात नहीं है, मुतालबे जहेज हराम है। अगर आपने मांगकर 5 लाख रुपया लिया, या आपने अपने समधी से मांगकर 4 लाख रुपया लिया और उसी पैसे से आपने VIP वलीमा का इंतजाम किया, तो जैसे जहेज मांगना हराम है, वैसे ही जहेज के रकम से खाना खिलाना भी हराम है। अब साहब वलीमा का जो खाना होगा वो हमारे लिए हलाल नहीं होगा। इसलिए आप भी खाने से पहले सोचिए, हम लड़के वाले के वलीमा में खाने आए हैं, हलाल खा रहे हैं या हराम खा रहे हैं? हलाल खा रहे हैं। देखिए, मुझको इस बात की परवाह नहीं कि आइंदा फिर आप कभी बुलाइएगा कि नहीं बुलाइएगा, या हजरत से कहिएगा उनको मत बुलाइएगा, लेकिन इसलिए मैं बोल रहा हूँ, एक रोज हराम का असर जानते हैं उसका क्या होता है? और से सुनिएगा, बादशाह वक्त है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के नाना बादशाह वक्त थे। साहब उन्होंने अपनी साहबजादी से कहा, ए मेरी वफादार और नेको किरदार बेटी, ये बता मैं तेरा रिश्ता करना चाहता हूँ, तेरे लिए कैसा लड़का तलाश करूँ? मैं राजा हूँ, मेरे पास कोई कमी नहीं है। वक्त की उस शहजादी ने कहा था, अब्बा हुजूर दौलत के बगैर जिंदगी गुजार लूंगी, बहुत दौलत मैंने देखी है, मगर अब्बा हुजूर मेरे आका ने कहा है जब शादी करना तो खास करो पे साथी दीन, हुस्न जमाल, खूबसूरती, दौलत, सरवत बाद में देखना, सबसे पहले देखना दीनदारी है कि नहीं है। अब्बा हुजूर दीनदार लड़का तलाशिए, मेरा निकाह कर दीजिए। बादशाह ने वजीर से कहा, वजीर एक काम करो, हुकूमत में जाओ और जाकर देखो कि मस्जिद में कोई ऐसा लड़का है जिसकी रात इबादत में गुजर रही। वजीर उस जमाने में पूरे दारुल हुकूमत का मुआयना करता है, शहर के जामे मस्जिद में पहुंचता है, देखता है खूबसूरत नौजवान रात की तन्हाई में मुसल्ला बिछाए सर पर सुजूद है, खुदा की बारगाह में रो रहा है, मौला दिन भर मेहनत करता हूँ, इसलिए तेरी बारगाह में हाजिरी ताखीर से होती है, मौला तुम मुझे इतनी ताकत दे कि पूरी रात तेरी बारगाह में सर पर सुजूद रहूं। जब लड़का फजर की नमाज पढ़कर जवान निकला है, वजीर ने कलाई पकड़ ली, कहा चलो तुझे बादशाह ने बुलाया है। शहजादे ने कहा, बादशाहत से मेरा क्या लेना देना, मैं फकीर इंसान हूँ, मैं गरीब शहजादा हूँ, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, दिन भर कमाता हूँ, शाम को लाकर उन्हें खिलाता हूँ और पूरी रात अपने मौला को मनाने में लगा रहता हूँ, मेरा बादशाह से क्या लेना देना। कहा नहीं चलो तुझे बादशाह ने बुलाया है। अब जब शहजादा पहुंचा है, बादशाह की नजर जब इस नूरानी चेहरे पर पड़ी है, बादशाह खड़ा होता है, इस्तकबाल करता है, करीब बैठाता है, कहता है शहजादे मेरी हुकूमत में तुझसे ज्यादा मुत्तकी परहेजगार कोई नहीं है, मेरी एक दरखास्त है, मेरी एक ही बेटी है, तू उससे निकाह कर ले और मेरी चाहे तो सारी हुकूमत ले ले। शहजादा मुस्कुराता है, कहता है बादशाह सलामत, इस्लाम में रिश्वत लेना हराम है, अर्राशी वल मुर्तशी इलैहुमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाले और देने वाले दोनों जहन्नम में जाएंगे, इसलिए मैं निकाह के बदले में रिश्वत नहीं ले सकता, मैं तुझसे ये दौलत नहीं ले सकता, लेकिन बादशाह सलामत मैं गरीब इंसान हूँ, मेरे पास एक ही कमरा है जिसमें माँ बाप रहते हैं, मेरी जिंदगी तो दिन भर जंगलों में लकड़ियाँ
काटने में, कमाने में गुजर जाती है और रात भर मैं मस्जिद में सर झुकाने में गुजार देता हूँ। मेरे लिए जमीन बिछौना है और आसमान सामियाना है। आपकी बेटी कहाँ रहेगी? आप निकाह करना चाहते हैं कर दीजिए, मगर मुझे मेरी एक दरखास्त है। कहा क्या? कहा आप अपने महल में कमरा दे दीजिए, मगर खाना आपका मेरी बीवी नहीं खाएगी, बल्कि मैं कमाऊंगा और अपनी बीवी को खिलाऊंगा। बादशाह ने कहा ठीक है। निकाह का इनेकाद होता है। साहिबों, अब साहब वो इंसान थे, दौलत मिल रही है मगर लेने को तैयार नहीं है। यहाँ बाप बैठकर हिसाब करता है, इंजीनियर बनने में 5 लाख लगा था और पढ़ने में 10 लाख खर्च हुए थे, सब जोड़ कर 15-20 लाख रुपए खर्च हुए थे। अब तो आप ही की बेटी ऐश करेगी, आराम करेगी। एक काम कीजिए, 15 लाख रुपए दे दीजिएगा। अगर इतना भी नहीं कर सकता तो इतना तो आसानी से कहता है, मेहमान तो बहुत आए, चले गए, आप हजरत मौलाना शकील साहब के मार्फत आए हैं। बहुत लोग आए थे कारी साहब, वो लोग स्कॉर्पियो दे रहे थे। आप भी इनसे कहिए अगर ये लोग तैयार हैं तो आपकी वजह से मैं रिश्ता कर लूंगा। ऐसे मांगता है, ऐसे मांगता है, अब मैं क्या बताऊं कैसे मांगता है। जैसे बेटा बाप से हक मांगा, ऐसे मांगता है, कोई टेंशन नहीं, कोई बात नहीं, आसानी से कह दिया, मगर उसने कभी सोचा नहीं। लेकिन देखो, जहाँ पे दीनदारी होगी वहाँ कभी दौलत की बात नहीं, वहाँ कभी सरबत की बात नहीं। अल्लाह अल्लाह। साहब, जब निकाह होता है, निकाह के बाद अब शहजादे की एक ही ड्यूटी है, दिन भर कमाता, शाम को पहले माँ बाप के लिए खाने का इंतजाम करता, उसके बाद फिर मस्जिद में इशा की नमाज पढ़ता, फिर राशन लेकर बीवी के पास महल में जाता, खाना बनता, मियाँ बीवी खाते, पूरी रात इबादत में गुजार देते। महीनों गुजर गए मगर बीवी से मुलाकात न की। शहजादी ने एक रोज अपने वालिद से कहा, अब्बा हुजूर, मैं जानती हूँ मेरा शौहर आपकी हुकूमत का सबसे नेक लड़का है, इबादत भी जरूरी है, निकाह भी जरूरी है, मगर हुकूक ज़ौजैन की अदायगी भी जरूरी है। इसलिए मैं भी आपको बताना चाहूँगा, याद रखिएगा, जैसे जिस्म के लिए खाना जरूरी है, वैसे ही जिंदगी में मर्द और औरत के लिए निकाह भी जरूरी है। लेकिन अफसोस है, हम जहाँ पे जीते हैं, लड़की 9 साल से लेकर 12 साल की उम्र में बालिग होती है, लड़का 12 साल से लेकर 14 साल की उम्र में बालिग होता है, लेकिन शादी साहब 10 साल, 12 साल, 15 साल बाद होती है। अगर इस बीच उन दोनों से गुनाह सरजद हो गए तो बताइए इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये वही लोग होंगे जिन्होंने कवानीन बनाए हैं, ये वही लोग होंगे जिन्होंने आज शादी ब्याह को जरूरत नहीं बल्कि इसे प्रोफेशन बना लिया है, इसे प्रोफेशनल बना लिया है। यही वजह है कि आज निकाह की जगह पर माज़अल्लाह लिविंग रिलेशनशिप में रहने को भारत के पार्लियामेंट में कानून बना दिया गया और इसे ज़ना बिल जबर से खारिज कर दिया गया। ताज्जुब की बात है, अब तो हम वहाँ जीते हैं जहाँ बुरे को अच्छा बना दिया जाए, अच्छे को बुरा बना दिया जाए, समाज खामोश रहे, तमाशाई बनी रहे। याद रखिएगा, जो कौम जितनी ताखीर से बेदार होती है उसे कुर्बानियाँ उतनी ही ज्यादा देनी पड़ती हैं। साहब, अब उनका दस्तूर था, जब शहजादी ने अपने बाप से कहा कि मेरा शौहर मुझसे मुलाकात नहीं करता, मुसल्ला बिछा के पूरी रात हम दोनों इबादत करते हैं। बादशाह ने दामाद को बुलाया, कहा शहजादे, मैंने इंसान बहुत देखे मगर तुझसा अच्छा इंसान नहीं देखा, मगर ये बता कि हुकूक ज़ौजैन की अदायगी क्यों नहीं करता? शहजादे ने सर झुकाकर कहा, बादशाह सलामत, मैं आप मेरे रिश्तेदार हैं, मैं आपको रुसवा करना नहीं चाहता, आप इतना बताइए, मेरे सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा कि आपके महल में हलाल कितना आता है और हराम कितना आता है। बादशाह ने सर झुका लिया, कहा शहजादे मैं नहीं जानता, मेरे यहाँ हलाल भी आता है और हराम भी आता है। कहा आप भी खाते हैं? कहा खाता हो। कहा आपकी बेटी भी खाती थी? कहा खाती थी। कहा एक रोज इंसान हराम खा ले तो 40 रोज तक उसका असर और उसके असरात उसके जिस्म पर रहते हैं। इसलिए मैंने निकाह के बाद सोचा कि पहले 40 रोज आपकी बेटी को मेहनत की कमाई रिज़्क़ हलाल खिलाऊंगा और 40 रोज
अपनी बीवी से मुलाकात करूंगा ताकि हलाल का असर मेरी बीवी के पेट तक पहुंचे, ताकि अल्लाह ताला उसकी बरकतों से हमारे नसीबे को जगमगा दे। बादशाह ने जब इतना सुना, बादशाह मुस्कुराने लगा, कहा शहजादे तुम सही कहते हो, अल्लाह ने इसकी बरकत ये दी कि बेटी भी नेक थी और बीवी भी नेक थी, शौहर भी नेक था, हलाल भी जानते थे, हराम भी जानते थे, इश्क भी सच्चा था, मोहब्बत भी सच्ची थी। जब सच्चे और दीनदार मियां बीवी का मिलन हुआ तो अल्लाह ने उनकी गोद में हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जैसा अजीम शहजादे को पैदा किया, जो मस्जिद नबवी शरीफ में बैठकर इस्लाम की तालीमात लोगों को दिया करते। आज हम लोगों के पास हलाल हराम के तमीज ही नहीं है। जबरदस्ती आपने 50 लोगों का कपड़ा मांग कर लिया तो ये लेना कैसा? क्या उस कपड़े में आपकी नमाज होगी? सोचने की बात है। आपने कभी हलाल हराम का फर्क नहीं समझा। यही वजह है आज शादियां हो जाती है, 1 महीना पहले से लड़का वाला नाच रहा है और 1 महीना से लड़की वाले नाच रहे हैं। मिलाद के बाद पूरी रात डीजे पे डांस हो रहा है। अब नाचते हुए लड़का वाला जाए और नाचते हुए लड़की वाले आए, जब दोनों तरफ से नचनिया बजनिया का मिलन होगा तो चमन में गौसे आजम जैसा गुलाब नहीं, नचनिया और बजनिया ही जन्म लेंगे। जो उठेंगे तो माँ को गालियां देंगे, उसकी बीवी सास ससुर को गालियां देगी। यही वजह है आज बुढ़ापे में भी आपको चैन और सुकून नहीं है, इसलिए कि आपने बच्चों को दीनदार नहीं बनाया। इसलिए शादियों से पहले बेटे और बेटी को दीनदार बनाइए ताकि आपकी नस्लें अच्छी हो, आपकी औलादे नेक हो, ये समाज अच्छा हो। आज हमने जहेज को फैशन बना लिया। अब जाहिर सी बात है जबरदस्ती मांग करके लेने वाला जो कपड़ा लिया जाता है वो भी जहेज है और हराम है, और लड़की वाली की खुशी वो दे न दे ये उसकी खुशी। तोहफा मांग कर थोड़ी लिया जाता है। आप पूछिए, उसी कपड़े को पहनकर आप ईद पढ़ रहे हैं, उसी कपड़े को पहनकर आप जुमा पढ़ रहे हैं, उसी कपड़े को पहनकर आप सुन्नत पढ़ रहे हैं। अब फिर कहते हैं मौलाना साहब मैं आपसे क्या कहूँ, कहने के लिए बहुत कुछ है। गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, घर को आग लग गई घर के चिराग से। आप शादियां करते हो, ईमानदारी से बताइए, आप सिर्फ डिग्री देखते हैं, आप सिर्फ खूबसूरती देखते हैं, आप सिर्फ अमीरी देखते हैं। अब आपका समधी हराम की कमाई से अमीर बना हो, इसकी कोई आपको परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। बहुत बड़ा आदमी है, रिश्ता उसी के यहाँ हम करेंगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताइएगा, अब साहब आपने सिर्फ दौलत देखकर, हुस्न और जमाल देखकर रिश्ता किया, अब शादी तो हो गई, मगर लड़का जब कहता है अपनी बीवी से 1 गिलास गिव मी वाटर, तो लड़की बोलती है नो नो नो, मैं तेरी नौकर बनकर आई हूँ। समाज में हक दोनों का बराबर है, जितना मर्द का हक है उतना औरत का भी हक है। इसलिए मैं तुझे पानी पिलाऊं नौकरानी समझते हो? मैंने जो जाकर ब्यूटी पार्लर में 50,000 का मेकअप किया है, तुम चाहते हो पानी छू लूं और मेरी मेहंदी धुल जाए, मेरा मेकअप खत्म हो जाए। इसलिए जाओ फ्रिज में से 2 बोतल पानी लेना, अपने लिए अलग लेना और मेरे लिए अलग लेना। क्यों? इसलिए कि उसे कॉलेज में यही पढ़ाया गया है कि एक दूसरे का जूठा पीने से बीमारी फैलती है, कोरोना वायरस फैलता है, वो यही जानती है। अगर उसने नबी की सीरत का मुताला किया होता, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका है, आका के साथ बैठकर खाना तनावल कर रही है। अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आज़मी ने इसे सीरत मुस्तफा में नकल किया है। खाना तनावल कर रही है, आका को प्यास लगती है, मुस्तफा करीम अपने हाथों से प्याले में पानी डालते हैं। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका, हम सब की अम्मी जान को भी प्यास लगी है,
پیالے کو انہوں نے اٹھایا ہے اور اٹھا کر پانی پینا شروع کر دیا ہے۔ آقا مسکرانے لگے۔ آج کا کوئی نوجوان ہوتا تو کہتا پانی میں ڈالوں اور تم پیو گی، اتنی ہمت